शहबाज शरीफ, बहुत शुक्रिया। हाँ, आज एक तरफ अपने सामने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नजरिए के मानों को देखकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूं। वहां अपने एक बावफा साथी और दरीना दोस्त मुशाहिदुल्लाह वफात पर भी बहुत रंजीदा हूं, जिन्होंने तमाम उम्र बड़ी बहादुरी और जुर्रतमंदी के साथ सिविल बालादस्ती का अलम उठाए रखा। मुझे याद है कि जब मैं अडयाला जेल में होता था तो वो मुझे हर हफ्ते में एक दफा मिलते थे और उनका शायराना ज़ौक जेल में भी मेरा हौसला बढ़ाता था और जेल में सुनाए उनके चंद शेर आज भी मुझे याद है। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। ये उनका एक शेर है जो कि मुझे अक्सर याद आता है। और फिर उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम लीग का साथ दिया और आज हमसे जुदा हो गए हैं, उनकी वफादारी और कमिटमेंट को हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं। उनके फर्जंद अर्जुमंद डॉक्टर अफनानुल्लाह खान आज सेनेट के मेंबर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि हम सब के लिए बाइस फख्र है। और ऐसे अनमोल साथी और नायाब लोग नसीब से मिला करते हैं। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और अफनानुल्लाह साहब को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मैं इस मरले पर हमजा शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। हमजा ने जिस जुर्रत और जवामर्दी से झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में 20 माह जेल काटी है, वो यकीनी तौर पर लायक तहसीन है और मैं इस बहादुरी पर हमजा को दिल की गहराइयों से शाबाश देता हूं। खवातीनों हजरात, आप जानते हैं कि जो जुल्म मौजूदा हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब पर और ख्वाजा आसिफ पर ढाया है और जो हमारे कारकुनों पे और कायदीन पे ढाया है, और जिस तरह से वो बड़ी हिम्मत और इस्तिकलाल के साथ इस जुल्म का मुकाबला करते रहे हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला शहबाज शरीफ साहब को भी और ख्वाजा आसिफ साहब को भी जल्द सुरखरू फरमाए और जबर और इंतकाम के इस दौर में हुकूमत के जुल्म और सितम सहते हुए, कैदो बंद की सख्तियां बर्दाश्त करते हुए, कारोबारी नुकसान उठाते हुए अपने नजरिए के साथ आप सबका जुड़े रहना कोई मामूली बात नहीं है।
میں آپ سب کو جو قائم و دائم رہے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. خواتین و حضرات، کل سینٹ کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح پر میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور گیلانی صاحب کی فتح اس بات کی عکاس ہے کہ عمران خان اور موجودہ حکومت ایوان میں اکثریت کھو چکے ہیں. اب وہ جو مرضی کہیں، ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، ریزولوشن پاس کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ میدان میں بھی ہار چکے ہیں. کراچی سے لے کے خیبر تک بلوچستان اس میں شامل ہے، اور وہ ایوان میں بھی ہار چکے ہیں، اور ایوان کے ساتھ ساتھ عوام میں بھی ہار چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب عمران خان کے لیے ایک لمحہ بھی وزیر اعظم کے طور پہ رہنا کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اپنا اخلاقی جواز کھو چکے ہیں. وہ انہیں فوری مستعفی ہو جانا چاہیے تاکہ 2.5 سال سے غربت، مہنگائی، بے روزگاری کی چکی میں پسنے والی عوام سکھ کا سانس لے سکے. آپ کی جماعت کا نظریہ ووٹ کو عزت دلوانا اور عوام کے حق حکمرانی کو تسلیم کروانا ہے، اور اسی نظریے پر ہم اور ہماری جماعت کے تمام ساتھیوں نے قدم سے قدم ملا کر چلنے کا عزم کر رکھا ہے. میں آپ کی ہمت، حوصلے اور جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی جماعت کو توڑنے کی سازشیں مشرف کے آمرانہ دور میں بھی ہوئی، مگر کیا مشرف کا جبر اور ظلم ہمیں توڑ سکا؟ نہیں توڑ سکا، بلکہ پہلے سے زیادہ قوت اور عزم کے ساتھ پاکستان میں عوام کی خدمت کے لیے ہم لوگ 2013 میں پھر آئے، اور پاکستان کو الحمدللہ ایشیائی ممالک میں معاشی قوت بنا دیا، اور G20 میں شامل ہونے کے لیے تیزی کے ساتھ سفر شروع کیا، اور بین الاقوامی رپورٹ نے اس کی تصدیق کی ہے. اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کیے، سڑکوں اور موٹر ویز کا جال بچایا، کراچی میں بدامنی کو ختم کیا، کراچی کی روشنیاں بحال کی، دہشت گردی کا خاتمہ کیا. مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلتے ہوئے ملک کو صرف اس لیے تباہی و بربادی کی دلدل میں پھینک دیا گیا کہ کچھ لوگوں کو نواز شریف اچھا نہیں لگتا، اور اسی بغض کی وجہ سے انہوں نے انتخابات چرائے اور ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کی کرسی پر اس کو بٹھا دیا. اس سلیکٹڈ نے 2.5 برس میں ملک کا جو حال کر دیا ہے وہ میری بہنوں اور بھائیوں آپ کے سامنے ہے. آج اس اہم اجلاس کو بلانے اور آپ سے گفتگو کرنے کا مقصد آپ کے حوصلے اور ہمت کو داد دینا ہے کہ اس جدوجہد کے پہلے مرحلے میں آپ الحمدللہ کامیاب ہو چکے ہیں، اور ووٹ کو عزت دو کا پہلا نعرہ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لگا. اس نعرے کے امین اور محافظ ہیں. آپ کی محنت اور پرعزم کردار کی وجہ سے آج یہ نعرہ
22 करोड़ अवाम के दिल में घर कर चुका है। अवाम ने जिंदगी इंतखाबात में अपना इंदिया दे दिया है। ये हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड हुकूमत की डस्का में एक बार फिर धांधली की कार्रवाई आंखें खोलने के लिए काफी है। जहां प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा कर लिया गया, थैलों को जाली वोटों से भर दिया गया, अगवा शुदा प्रिजाइडिंग अफसरों के पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की शरह 35% से बढ़कर 85% कर दी गई। अंदाजा करें आप, 2018 इलेक्शन चोरी का तरीका वारदात दस्का में फिर दोहराया गया, जिसे पार्टी के बहादुर जानसार कारकुनों ने इंक्लूडिंग राणा सनाउल्लाह शदीद धुंध के बावजूद उनको रंगे हाथों पकड़ लिया। ये आपकी अज़म, आपकी हिम्मत और जुर्रत से मुमकिन हुआ कि अब पूरी कौम जान चुकी है कि 2018 के इंतखाबात को भी इसी तरह चोरी किया गया। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है कि कैसे चंद आइन शिकनों ने फैसला किया कि एक ऐसे मोहरे को जितवाना है जिससे वो अपनी मर्जी की चालें चल सके। लिहाजा वोट चोरी करके एक नाअहल और ना तजुर्बाकार और नालायक आदमी को कौम के स्तरों पर मुसल्लत कर दिया गया। इन आइन शिकनों ने जो किया है, आज 22 करोड़ अवाम उनसे पूछ रही है कि क्यों तरक्की करता हुआ आगे बढ़ता हुआ पाकिस्तान बर्बाद कर दिया गया, क्यों खुशहाली का पहिया जाम किया गया और क्यों उनके बच्चों से नवाला छीनकर फाकों की तरफ धकेला गया, क्यों उनसे रोजगार छीना गया, क्यों बिजली के रेट दुगने से भी महंगे कर दिए गए। वो बिजली का बिल कहां से दें? अवाम सवाल पूछ रही है कि क्यों पाकिस्तान को गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी और बदअमनी की गहरी खाई में फेंक दिया गया। सवाल पूछ रही है पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान के गरीब अवाम कि आटा, चीनी, घी, दालों और सब्जियों जैसी बुनियादी जरूरियात जिंदगी की कीमतें क्यों दुगनी हो गई हैं। और सवाल पूछ रहे हैं वो वालिदैन जिनके बच्चे दवाई ना मिलने से बिलक बिलक कर मर गए और मर रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं वो बेबस माँ बाप जिनके पास बच्चों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं है। सवाल पूछ रहे हैं डिग्रियां जलाते हुए वो नौजवान जिनको 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया। सवाल पूछ रहे हैं 50 लाख घरों के इंतजार में बैठे हुए लोग कि वो घर कहां हैं। एक तरफ व्हाट्सएप पर JIT बनाकर झूठे मुकदमात बनते हैं, एक धेले की करप्शन साबित नहीं होती और एक धेले की करप्शन साबित ना होने के बावजूद बेटे से फर्जी तनख्वाह लेने पर वजारत से फारिग कर दिया गया। और दूसरी तरफ बिलियन ट्री, मालम जब्बा और BRT मंसूब कौम के अरबों रुपए हड़प कर गए। फॉरेन फंडिंग में रसीदें मांगी गई तो खामोशी। अलीमा खान की अरबों की जायदाद की रसीदें मांगी गई, खामोशी। बनी गाला और जमान पार्क की
रसीदें मांगी गई, खामोशी। और जनरल आसिम सलीम बाजवा से अरबों रुपए की जायदादें की रसीदें मांगी गई तो खामोशी। मुझे फख्र है जमहूरियत के कारवां की जो मशल आपने थामी है। अब इसकी फैलती हुई रोशनी में हर जी शूर ये पूछता नजर आता है कि आपका काम मुल्क के दफा को मजबूत बनाना था या पीटीआई को जितवाना। आपका काम सरहदों की हिफाजत करना था या पोलिंग स्टेशनों पर कब्जा जमाना। आपका काम दुश्मन की चालों पर नजर रखना था या आरटीएस को फेल करवाना। आपका काम आइन का एहतराम करना था या जमहूरी हुकूमतों के तख्ते उल्टाना। आपका काम अपने हल्फ की पासदारी करना था या रियासत के ऊपर रियासत बनाना। मेरे भाई और बहनों, पाकिस्तान को अगर हकीकी जमहूरियत के रास्ते पर डालना है, अगर यहां आइन की हुक्मरानी होनी है, अगर यहां सारे मामलात मुहज़्ज़ब जमहूरी ममालिक की तरह दस्तूर के मुताबिक चलने हैं, तो उन कुव्वतों को अपना रवैया तब्दील करना होगा जो जमहूरियत और रियासती निजाम को बार बार पांव तले रोनते हैं। आप मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, अपने दिल से पूछकर बताएं कि क्या मैं गलत कह रहा हूं। आप मुझे जवाब दें कि क्या वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए? क्या आइन तोड़ने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? क्या कानून की धज्जियां बखेरने की इजाजत दे देनी चाहिए? क्या अवामी नुमाइंदों को रुस्वा करने वालों का रास्ता नहीं रोकना चाहिए? मैं उन सब आइन शिकनों और उनको तहफ़्फ़ुज़ देने वालों को बता देना चाहता हूं कि नवाज शरीफ का बयानिया, हमारा बयानिया माशाअल्लाह अब कौम का बयानिया बन चुका है, कौम के दिल की आवाज बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ चुका है कि इस राह में आने वाली हर रुकावट को अवाम अब अपने पांव की ठोकर से उड़ाकर रख देंगे इंशाअल्लाह। अब वोट को इज्जत दिलवाने की जद्दोजहद का फैसला कुन मरला आ चुका है और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस मरले में भी इंशाअल्लाह आप सुरखरू होंगे। आप सब माशाअल्लाह अवामी नुमाइंदे हैं, आप अवाम से बराह रास्त राब्ते में रहते हैं। आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है कि अवाम की हालत जार क्या है। ये हालत देखकर मुझे बहुत दुख होता है। आप भी अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर मुझे बताएं कि अवाम आपसे अपनी बदहाली का जिक्र करती है या नहीं करती। क्या आप उनके चेहरों पर फैली मायूसी देखते हैं या नहीं देखते। इस नाअहल हुकूमत ने जो महंगाई का बाजार गर्म कर रखा है, जहां आम आदमी का जीना दोबर हो चुका है, पेट्रोल और बिजली के नरकों में हर चंद दिन के बाद इजाफा ने अवाम को कुचल के रख दिया है। और जब महंगाई के सताए दुहाई देते हुए सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहें बढ़ाने का मुतालबा करते हैं, तो ये जालिम उन पर एक्सपायर्ड आंसू गैस के शेल फेंकते हैं और उनको जान से मार देते हैं। ऐसे इंतजामी जिम्मेदारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप नहीं करेंगे, हम करेंगे इंशाअल्लाह। क्या आपके हल्के के अवाम, आपके वोटर आपसे ये सवाल नहीं पूछते
کہ وہ اس महंगाई کے तूफान में अपने बाल बच्चों को खाना कहां से खिलाएं, उनकी जरूरियात जिंदगी कैसे पूरी करें। एक पेज पर होने का दावा करने वाले अवाम को जरा बताएं कि क्या उनके एक पेज पर होने से गरीब का पेट भरा। आप सब मेरे साथी और दस्तों बाजू हैं, आप भी अब इस फैसला कुन मरले के लिए तैयार हो जाएं जो अब आगे आ रहा है। और मेरे भाई और बहनों, मैं इस गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी, गरीब, दुश्मन, नाहल और करप्ट सेटअप पर आवाज उठाना अपना फर्ज समझता हूं, इबादत समझता हूं, और इस कौमी फर्ज की अदायगी का बेड़ा मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उठा चुका हूं, और इंशाअल्लाह आप और कौम के साथ मिलकर इस अजीम मकसद के लिए किसी भी कुर्बानी ना कभी पहले दरेक किया है, ना आइंदा करूंगा। और आपने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। ये वक्त कमजोरी दिखाने का नहीं है, बल्कि दिलेरी के साथ आगे बढ़ने का है। और कमजोर दिल अफराद भी इस तारीखी मोड़ पर दिल बड़ा करें और ये ऐद करें कि ना हमें अंग्रेजों की गुलामी कबूल थी और ना ही इन आइन के गद्दारों की गुलामी कबूल है। हमें तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आना चाहिए। हमें अपनी इज्जत नफ्स पर कभी कोई समझौता नहीं करना। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा आपकी तरफ बढ़ने वाले हर हुकूमती जबर और जुल्म को पहले अपने सीने पर लिया, अपनी और अपने खानदान की कुर्बानी पहले पेश की, लेकिन आपके लिए 22 करोड़ अवाम के हकूक के असूल के लिए कभी एक लम्हे के लिए पीछे नहीं हटा। अब सब इस बात के गवाह हैं कि मैं अपने मौकफ से रत्ती बराबर भी ना बतौर वज़ीर आज़म पीछे हटा और ना इंशाल्लाह कभी हटूंगा। मैंने तो अपने हिस्से का दिया जला दिया है। अब आप इस पैगाम को पाकिस्तान के तूलू अर्ज में फैलाने की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि कौमों की जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते, और अगर हमने इन आइन शिकन किरदारों का रास्ता ना रोका तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। अवामी जोश और जज्बे को साथ मिलाकर इस तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मेरे इख्तियार या मेरे जाती इख्तियार का मुकदमा नहीं है। ये आपके वोट को इज्जत देने का मुकदमा है। ये आइन की पासदारी का मुकदमा है। ये कानून की हुक्मरानी, इंसाफ की फराहमी और आइन की बालादस्ती का मुकदमा है। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखना चाहता हूं कि जो हसन इकबाल ने आपको अभी रोड मैप दिया है उस पे कब तक, उस पे कैसे आप अमल दरामद करते हैं, और 26 मार्च के लॉन्ग मार्च को आप किस तरह से कामयाब कराते हैं। ये मैं आपके जज्बे पे छोड़ता हूं। इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि आपकी मेहनत और आपके कोशिशें जरूर रंग लाएंगी और पाकिस्तान बदलेगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान को जो ये बीमारियां लगी हुई हैं, इन सब बीमारियों से हम जान छुड़ाने से में कामयाब हो जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, आपने मेरे कदम से कदम मिला के चलना है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।